ایک مرتبہ پھر سے آپ کو براہ راست سپریم کورٹ کے باہر لیے چلتے ہیں، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ اہم مسئلہ ہے اس وقت پوری قوم اور ایک قوم کا جو ایک وزیر اعظم ہے وہ اور اس کی جو فیملی ہے ان کا احتساب تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ خان صاحب پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ ہمیشہ کا موقف ہے کہ یہ انویسٹیگیشن صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی، یا میں یہ کہوں گا کہ اس انویسٹیگیشن میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے وہ لوگ جن کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور جو اس وقت پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، جو طاقت کی کرسی پہ بیٹھے ہیں۔ یہ آج جو بات کھل کے آ گئی ہے، ہمارا موقف جو ہے وہ ثابت ہو گیا ہے، اور آج میں آپ کے سب تمام کے سامنے، پاکستانی عوام کے سامنے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ وزیر اعظم کو ریزائن کر دینا چاہیے، مستعفی ہو جانا چاہیے۔ جب تک کہ انویسٹیگیشن کی رپورٹ نہیں آتی مستعفی ہو جانا چاہیے۔ وہ اس وقت رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں کہ یہ انویسٹیگیشن انکوائری جے آئی ٹی کی جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ تصویریں لیک ہو رہی ہیں اور کیا کیا پتہ، ہمیں نہیں پتہ ابھی کہ پیچھے اس کے کیا کیا اور چیزیں ہیں جس وجہ سے جے آئی ٹی نے یہ بات آج آ کے رپورٹ کی ہے۔ اب ہر دن عدالت کے اوپر اور جے آئی ٹی کے اوپر اٹیک، حملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ میں یاد دلاؤں کہ یہ جے آئی ٹی ایک ہوا میں جے آئی ٹی نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کی جے آئی ٹی ہے، یہ سپریم کورٹ کی ایکسٹینشن ہے، یہ سپریم کورٹ کے حکم پہ بنائی گئی ہے۔ تو یہ حملہ جے آئی ٹی پہ کرنے کا مطلب ہے کہ یہ حملہ سپریم کورٹ پہ کر رہے ہیں۔ یہ نہال ہاشمی کی بات، جو باقی ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور ہمیں اور بھی خبریں مل رہی ہیں، بہت خبریں مل رہی ہیں، ہم بھی ویل انفارمڈ ہیں، ہم اس چیز کے پیچھے ہیں، ہم چکنے ہیں کہ یہ اور بھی حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ کل خان صاحب نے وارننگ دی ہے کہ یہ کام کرنے کی کوشش مت کرنا، نہیں تو پوری پاکستان تحریک انصاف ایک دیوار بن کے سامنے کھڑی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس جے آئی ٹی کو ہم پروٹیکٹ بھی کریں گے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو انویسٹیگیشن کرنے کا پورا حق دیا جائے کھل کے۔ اب آج بینچ نے فیصلہ دیا ہے کہ جو بھی رکاوٹیں ہیں جے آئی ٹی کو جو پیش آ رہی ہیں وہ لکھ کے دیں، اور وہ سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دیں کہ جی یہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، پھر سپریم کورٹ ڈائریکٹو دے گی۔ میں آج سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اب بہت غور کرنا چاہیے، اس بات پہ بہت غور کرنا چاہیے کہ نواز شریف ہماری ڈیمانڈ پہ یا کسی اور کی ڈیمانڈ پہ اپنی کرسی چھوڑنے والا تو نہیں ہے، مگر سپریم کورٹ کو غور کرنا چاہیے۔ اور میرے خیال میں، پاکستان تحریک انصاف کے خیال میں، اب وہ موقع آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ آرڈر کرے پرائم منسٹر نواز شریف کو کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، وہ استعفیٰ دیں جب تک کہ ان کی انویسٹیگیشن جے آئی ٹی پوری نہیں کرتی، کیونکہ یہ اب ثابت ہو گیا ہے کہ یہ اس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ رکاوٹیں ہم تو نہیں ڈال رہے ہیں نا، رکاوٹیں تو صرف حکومت ڈال رہی ہے۔ حکومت کس کی ہے؟ نواز شریف کی۔ جب تک نواز شریف حکومت میں رہے گا یہ چیز ہمیشہ ہمیشہ مسئلہ رہے گا۔ اور آج کیونکہ یہ منظر عام پہ بات آ گئی ہے، جے آئی ٹی کی طرف سے آئی ہے جو سپریم کورٹ کی ایکسٹینشن ہے، تو میں اپنے امپلیمنٹیشن بینچ کو طرف امید کرتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر فوری ایکشن لیں گے، اور ایکشن جو لینے والا ہے وہ صرف ایک بنتا ہے کہ نواز شریف کو کہیں کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کریں، آپ ہٹیں، کرسی چھوڑیں، اور اب پوری انویسٹیگیشن ہونے دیں، کیونکہ اب 30 دن ہو گئے ہیں۔ اگلے 30 دن کا جو مرحلہ ہے وہ ایک بہت بہت سیریس اہم مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے جے آئی ٹی کا بھی کہنا ہے، اور ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو ریزائن کرنا چاہیے، استعفیٰ دینا چاہیے، اپنی طاقت کی کرسی چھوڑ دینی چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے، آپ نے کہا کہ جے آئی ٹی کے جو تحقیقات اس میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، سپریم کورٹ نے آج بھی کہا ہے کہ 60 دن کے اندر ہر صورت میں تحقیقات کی رکاوٹیں سے وقت ضائع ہوگا، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ 60 روز میں تحقیقات مکمل ہو جائے؟ دیکھیں 60 دن میں یہ تو پہلے دن سے سپریم کورٹ ہر موقع پہ کہہ رہی ہے، مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں تو وہ 60 دن میں اپنا کام کرنا جو ہے ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، اسی لیے نواز شریف کا استعفیٰ دینا ضروری ہے۔ جو نواز جو نواز جو نواز
सुप्रीम कोर्ट में कि वो जो तस्वीर हुसैन नवाज़ की आई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, हम कहते हैं बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मुख्तलिफ ड्रामे आपको नज़र आ रहे हैं, ये निहाल हाशमी का ड्रामा देखें। पहले उसने सुप्रीम कोर्ट को और सारे अदारों को डराया धमकाया, और जब इन्होंने अपने बड़ा बबांदे दोहल कहा कि जनाब हमने उसको कह दिया कि वो रिज़ाइन करे, ये करे, वो करे, और रिज़ाइन कर भी दिया। 2 दिन के बाद क्या हुआ कि उसने अपनी रेजिग्नेशन वापस ले ली, और उसने ये सारा नाटक है, ये सारा ड्रामा, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये तस्वीर वाली चीज़ें, ये निहाल हाशमी के मामलात, ये सारे के सारे, ये शहबाज शरीफ ने आज कमाल की स्टेटमेंट दी है। शहबाज शरीफ ने अदालत को ये कहा है कि आपने अपनी बंदूकें जो हैं वो हमारी फैमिली की तरफ तानी हुई हैं। अब इमेजिन कर सकते हैं कि उस मुल्क में जहाँ पे एक आइन है, एक जमहूरियत है, वहाँ एक चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली एक्यूज़ कर रहा है कि आप लोगों ने हमारे ऊपर बंदूकें तानी हुई हैं। क्या इसका मतलब है कि वो सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है उसको क्वेश्चन कर रहा है? और ये हम ये समझते हैं कि ये कंटेम्पचुअस रिमार्क्स है, और इन कंटेम्पचुअस रिमार्क्स का कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। तो हम इसको, ये जो सारे प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है, 60 दिनों के अंदर JIT की रिपोर्ट आनी चाहिए, और जो भी रुकावटें हैं उस रास्ते में उनको हटा के इंश्योर किया जाए कि 60 दिन में रिपोर्ट आए। आपने ये ज़रूर कहना है कि ये इत्तेसाद इनका कई दफ़ा हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ से सिलसिला सेक्रेटरी जनरल साहब ने और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साहब ने छोड़ा है, मामला ये है कि ये जो एहतसाब का अमल है नवाज़ शरीफ साहब का और उनके ख़ानदान का, ये तारीख़ में पहली बार हो रहा है। और ये जो घबराहट आप देख रहे हैं उसकी भी वजह यही है कि चूँकि पहली बार हो रहा है तो नया काम है, इसलिए आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। जब मिठाइयाँ बांट रहे थे तो हमने मशवरा दिया था कि भाई पहले उर्दू तर्जमा पढ़ लो फिर मिठाइयाँ बांटना। फिर हमने उर्दू तर्जमा करा के दिया। अब वो उर्दू तर्जमा पढ़ा है तो आपके सामने है कि टस्वे नहीं रुक रहे। हुसैन नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ा जुल्म हो गया है, उनको बिठाया गया है। ज़रा शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि बंदूकें तानी हुई हैं ख़ानदान के ऊपर। मैं शहबाज शरीफ साहब से कहता हूँ थानों में भी फिर यही इन्वेस्टिगेशन का अमल जो है वो लागू करे। जो एयर कंडीशन कमरों में बैठ के टिश्यू पेपर साथ रख के इन्वेस्टिगेशनें पंजाब में कहाँ हो रही हैं, वहाँ पर थानों में एक कोड इम्प्लीमेंट करें। और जिस तरह का तस्वीर छाया हुई है उस तस्वीर में क्या मिसिंग है, सवाए कॉफ़ी के और सैंडविच के उस तस्वीर में क्या मिसिंग है? वो भी रमज़ान था, वरना मुझे लगता है वो भी आपको सामने पड़ी हुई मिल जाती। जिस तरीके से इंटिमिडेट किया जा रहा है, ये अभी आपके सामने जो झूठों का टोला आ गया है, और जिस तरीके से जो उन्होंने सहाफ़ियों के साथ यहाँ सलूक किया, जिस तरह से माइक गिरा के चले गए, इससे आपको इनके ज़र्फ़ का पता चलता है। इनसे आपको पता चलता है कि इनके ये कितने छोटे लोग हैं जिनके लिए कुर्सियाँ नीचे आई हैं। ये लोग ऊपर नहीं गए हैं, कुर्सियाँ इनके लिए नीचे आई हैं। और ये जो अभी नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, एक तरफ जजेस को और पीछे लगाया हुआ है कि मैनेजमेंट लेवल के ऊपर, और यहाँ पर वकील भी भेज रहे हैं, एप्लीकेशनें भी दे रहे हैं, और यहाँ पर खड़े होकर तलाल चौधरी और दानियाल अजीज जैसे लोग JIT को धमकियाँ भी लगा रहे हैं। निहाल हाशमी ने जो किया है वो 100% नवाज शरीफ साहब इस ड्रामे के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। हम मान ही नहीं सकते कि निहाल हाशमी की इतनी सियासी हैसियत है कि वो अपनी तरफ से ये बात करे। हम मान ही नहीं सकते कि तलाल चौधरी और दानियाल अजीज की अपनी ये सियासी हैसियत है कि वो अपनी तरफ से बात करे। लेकिन जिस तरह से सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर है हमारे पास। हम अगर खड़े हो गए तो इनको यहाँ पर खड़े होने की जरूरत नहीं होगी, और सुप्रीम कोर्ट के साथ, आइन के साथ, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ और एहतसाब को मंतकी इंजाम तक पहुँचाने के लिए हम मुकम्मल साथ देंगे इदारों का और आइन का, और इंशाअल्लाह ताला ये अमल मंतकी इंजाम तक पहुँचेगा, और इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि कोई कौन इनको गजन पहुँचाता है। बहुत जिस तरह अंदर वकील ने भी उनका ये कहा कि जो तस्वीर छाया हो गई है उसमें कैरेशन भी तस्वीर दिया जाए, और दूसरा यहाँ आके भी उन्होंने JIT के मेंबरान को तनकीद का निशाना बनाया। उनका तो कहना था कि हमने 3 नस्लों का हिसाब दिया है सुप्रीम कोर्ट के उसमें। तो क्या आप लोग अदालत में इस हवाले से भी कोई बात करेंगे फर्दर? देखें, इस वक्त हम खड़े हैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर। ये पिटीशन थी इमरान खान साहब की, जिसके ऊपर फैसला आया कि एक JIT बनेगी जिसकी कंपोजिशन
कौन कौन होगा वो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी ली है और वो जिम्मेदारी इंशाल्लाह ताला निभाएगी। हम ये जो JIT पे हमला कर रहे हैं, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा आज जब से ये इक़्तिदार में आए हैं, ये पहली दफ़ा इनका एहतसाब हो रहा है, पहली दफ़ा इस ख़ानदान का एहतसाब हो रहा है। आज तक एहतसाब औरों का हुआ है, इनका नहीं हुआ। इन्होंने हमेशा अपने फिक्स्ड मैच खेले हैं, इन्होंने हमेशा अंपायर अपनी मर्ज़ी के रखे हैं, इन्होंने हमेशा हर चीज़ कानून की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। इस दफ़ा इनका पहली दफ़ा एहतसाब हो रहा है, इसलिए चीखें निकल रही हैं। कसाई की दुकान शर्म आनी चाहिए। यार मतलब मैं आपको इस ऐसी ये बाजारी बातों के ऊपर मैं कोई जवाब भी नहीं देना चाहता आपको। आप खुद समझते हैं कि ये क्यों कह रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए इस किसी की बातें करते हैं। गलत बात है ना ये व्हाट्सएप के ग्रुपों पे चीज़ चल रही थी, वहाँ से ये आ गई मीडिया के इतना सोशल मीडिया के ऊपर। भाई मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है। हमारा कोई सीक्रेट क्या कहते हैं इसको, कोई वो इन्वेस्टिगेशन आम नहीं है कि हम जाएं अंदर JIT घुस जाएं उस बिल्डिंग के अंदर और तस्वीरें लें लोगों की। ये इन्होंने खुद लीक की है अपने आप को सिंपैथाइज करने के लिए। नून लीग ने कहा है कि इमरान खान नथिया गली में छुपे हुए हैं, उनको यहाँ पर इश्तिहारी करार दिया गया और वो वहाँ पर पुलिस की पनाह ली हुई है KP गवर्नमेंट की, और इसी वजह से वो बनी गाला जो वापस नहीं आ रहे हैं। इस हवाले से क्या कहना है? देखें ये क्या मफरूर, किस चीज़ के मफरूर हैं, मुझे समझाया तो सही कोई। ये हम सब के, मैं भी मेरे ऊपर भी, शफकत महमूद के ऊपर भी, नेमुल हक के ऊपर भी, तमाम लीडर्स के ऊपर इन्होंने पर्चे किए थे, झूठे पर्चे किए थे इन्होंने दहशतगर्दी की अदालत में। और ये बहुत इस वक्त आपने देखा कि PTI के रहनुमाओं की मीडिया ब्रीफिंग का सिलसिला यहाँ पर जारी है और यहाँ पर बात करते हुए सख्त तनकीद का निशाना बना गया एक मरतबा फिर हुकूमत को।